जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, सब तो पहला गुरु महाराज जी ते संगत जी मैनू माफ़ी दे देना। मेरी तबीयत थोड़ी जी ठीक नहीं है, मैनू जुकाम हो रखा है। जे मेरी आवाज़ समझ ना आ रही होवे तो उसके लिए माफ़ी, या मैं कुछ ऐसा वैसा बोलदा था उसके लिए भी माफ़ी। गुरु महाराज जी ते संगत जी, गुरु महाराज जी तुहानू सब तो बड़ा शुकराना कि तुसी साडी बांह फड़ी हुई है। गुरु महाराज जी तुसी सानू अपनी बेटी बनाया ते तुसी सानू अपनी धी बनाया, उसके लिए शुकराना। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। कोटि कोटि शुकराना गुरु महाराज जी। अनंतम अनंत बहुत बहुत शुकराना उसके लिए गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरु महाराज जी हमेशा अपने अंग संग रहंदे ने, चाहे दुख होवे चाहे सुख होवे, हमेशा अपने अंग संग रहंदे ने। उसके लिए अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। सच्ची कह रही आई लव यू है गुरु महाराज जी। मतलब सारा दिन गुरु महाराज जी ने एक हमेशा एक दिमाग ते रहंदे ने। कोई भी चीज़ करनी होवे या कोई चीज़ की परेशानी होवे या खुशी होवे या कुछ होवे, हमेशा गुरु महाराज जी ही ध्यान चाहते ने। अज दी डेट दे विच संगत जी मैं सच्ची गल कह रही हूं, पहले मैं मम्मी 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 करती सी, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮੈंने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਦ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਸਭ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਲਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਿਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ 100% ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਜਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਣ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਤਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 4 ਬੈਡਰੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ 2 4 ਕਦੋਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਿਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ, ਇਹ ਖਰਚਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਓ, 1000 2000 ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਰਚਦੀ ਹਾਂ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਠਹਿਰਾਓ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੁਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਜਦ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੈਨੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪੋਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਕਦੇ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦਾਂ ਜੋੜਿਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੋਚਾ ਲਗਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਫੜੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਉਸਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਮਿਹਰਾਂ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਤਰੀਕੇ ਫਰਕ ਹੈ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਂ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 1 ਔਰ 2 ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿਆ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ।
ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕੀਤੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਉਹ ਪਾਲਣਹਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚయిਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸਮਝਣ ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਟ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਚ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੁੱਤ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਚਾਵਲ, ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਚੁਗਲੀ। ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚਾਵਲ, ਕੱਲ ਗੁੱਸੇ ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਖਾ ਲਏ ਮੈਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਕਲੀਗ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਲੀਗ ਅੰਕਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਗ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆਪਸ ਚ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, 19-21 ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਲੀਗ ਨੇ, ਜਦ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈ, ਇਸਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ, ਮੈंने ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਬਟ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਲੀਗ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾ, ਤੈਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਚੰਗੇ ਵੀ ਪੁੰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਾਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਣਗਿਣਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੇ 36 ਘੰਟੇ ਅਗਲੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ।
गुरु महाराज जी कहते नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। और आज गुरु महाराज जी ने दिखाया और उसे ठीक ही चलाया। बट गुरु महाराज जी आपे उसका ध्यान रख लेंगे। पर गुरु महाराज जी कहना चाहते हैं कि जो मैं तेन कहना ना, वो सुनिया कर। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝੂਠ, ਚਲਾਕੀ, ਫਰਾਡ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਜਪਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। माफ कर देना, माफ कर। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैंने अपने बहुत सारे सत्संग पहले भी, यानी कि बहुत सारे क्या, जो भी गुरु जी ने करवाए मैंने शेयर किए हैं। अब जिन आंटी के चैनल पे मैं सत्संग शेयर करती थी वो नंबर मुझसे मिस हो गया, तो काफ़ी टाइम हो गया मेरे को सत्संग शेयर किए हुए। अब गुरु जी के मैसेज आते हैं अपना सत्संग शेयर कर। अब मुझे एक दो नंबर मिले हैं, मैंने उन पे अपने यानी जो भी सत्संग है वो शेयर किया है, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुए। शायद गुरु जी की इच्छा नहीं है, गुरु जी नहीं चाहते इसलिए, क्योंकि मैं सत्संग सुनते रहती हूँ तो सबके सत्संग आते हैं, लेकिन मेरा सत्संग तो अभी तक भी चैनल पर अपलोड नहीं हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिन आंटी के चैनल पे मैं ये सत्संग डाल रही हूँ तो प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि गुरु जी के मैसेज आते हैं तूने सत्संग करना छोड़ दिया, तू सत्संग ही नहीं करती है। अब पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, या गुरु जी नहीं चाहते, या जो भी है, मन भी नहीं करता सत्संग करने का। गुरु जी के साथ तो हर दिन सत्संग होते हैं, लेकिन घर में क्या चल रहा है क्या नहीं पता नहीं। गुरु जी विराजमान है मेरे साथ घर में, कहते हैं मैं तेरे मंदिर में खुद विराजमान हूँ, लेकिन फिर भी घर में कुछ ऐसा हो रखा है
जो कि सही नहीं है। पता नहीं मैसेज आते हैं कि तेरे घर पे किसी ने कुछ कर रखा है, ब्लैक मैजिक है, जिस कारण ये सब होता है। तू सत्संग कर, सत्संग शेयर कर। सॉरी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी, मैं मेरठ से बोल रही हूँ और मैं गुरुजी से 2023 में अप्रैल के बीच में जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मुझे बहुत सुकून भी मिला गुरुजी से जुड़ने के बाद। लेकिन फिर भी मैं पहले ना, जब गुरुजी के पास गई थी, गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया था। मैं दिल्ली में रहती थी संगत जी, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब ठीक था। जब मन करता था गुरुजी से भी मिलने चली जाती थी। गुरुजी बुला लेते थे अपने द्वार पे, कहते थे ये तेरा मायका है, मैं तेरा प्यो हूँ, तू घबराया ना कर, कोई दिक्कत परेशानी है तो मैनू दसा कर, मेरे नाल बैठ के बात करा कर। लेकिन संगत जी कुछ ऐसा हुआ, गुरुजी ने किया जो हमें हमारे होम टाउन वापस ले आए मेरठ में। और शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि हम वहाँ रेंट पे रहते थे, फिर हम अपने घर पे आ गए। जैसा भी है, जो भी गुरुजी ने दिया हुआ है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे आने से पहले एक सपना दिखाया था। उसमें गुरुजी ने मुझे मेरे घर का जो दरवाज़ा है पहले, तो उसे चेंज होता हुआ दिखाया था। सब अच्छे से घर को तैयार करते हुए दिखाया था सपने में। तो संगत जी, सेम गुरुजी ने वैसे ही मेरा घर करवा दिया है जैसे उन्होंने सपने में दिखाया था। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी ने मेरे को ये सपना दिखाया था, तो मैं बता दूं, मेरी पहले से ही ना, मेरी सास से तो बिल्कुल नहीं बनती संगत जी। लेकिन सत्संग जब सपना दिखाया था गुरुजी ने, तो मेरे को दिखाया था कि गुरुजी ने जो घर है वो अच्छे से करवा दिया, उसका गेट दूसरी तरफ से करवा दिया, और उस घर में हम साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो मेरे को ना गुरुजी पापा जी के रूप में दिखे थे, मेरे ससुर के। तो पहले तो घर ठीक हो गया, अच्छा हो गया, सही है, तैयारी कर रहे हैं। मेरी सास भी है, तो सास थोड़ा सा ना जैसे ताने वाने देती है, जैसे बोलती है चीज़ों में, वो निकालती है नुक्स कि ये सही नहीं है, गलत है, ऐसे नहीं करना, वैसे करना। तो मैं अपने ससुर से कह रही हूँ कि पापा जी देख लो, मम्मी फिर पहले जैसे करने लगी। तो यानी पापा जी क्या, मेरे को लगता है कि मेरे को गुरुजी दिखते थे वो, अब तो नहीं दिखते, काफ़ी टाइम हो गया। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है संगत जी। और फिर दिखा के मेरे हस्बैंड के जो बड़े भैया हैं वो आए और चप्पल लेके घर में घुस गए। अब वो चप्पल लेके घर में घुस गए, तो मैं उनसे गुस्सा हो रही हूँ कि देखो, अपने घर में तो ये चप्पल इतनी दूर उतारो तो भी इन्हें गुस्सा आता है जाने में, और हम मेरे घर में ऐसे घुस रहे हैं जबकि मैंने साफ सफाई कर रखी है। अब पता नहीं गुरुजी ने वो कैसा सपना दिखाया था, कैसा नहीं। तो संगत जी, कहने का ये तात्पर्य है कि गुरुजी ने घर भी वैसा करवा दिया, साफ सफाई भी पूरे घर की करवा दी वहाँ से आने के बाद। लेकिन संगत जी, वही है कि गुरुजी ने वहाँ तक ही साथ दिया कि हाँ, मैंने तेरा घर बनवा दिया, सही करवा दिया। लेकिन वो जो कलेश, लड़ाई झगड़े, वो जो कि तो ही है, बिना फालतू में घर में लड़ाइयाँ होती रहती है। अब पता नहीं गुरुजी की क्या इशारा है, क्या नेगेटिविटी है, क्या किसी का कराया है। संगत जी, मेरे पति भी नहीं मानते थे गुरुजी को, लेकिन गुरुजी से मैंने अरदास की तो वो मानने लगे। गुरुजी ने उन्हें सेवा भी बख्शी है अपने बड़े मंदिर में। लेकिन संगत जी, जैसे सब पूरी संगत बोलती है ना कि मुझे सुकून मिला है, मेरे घर में पहले ऐसे लड़ाई झगड़े होते थे, या
मेरा पति कहना नहीं मानता था, वो मानने लगा, मेरी केयर करने लगा, या मेरे बच्चे मेरा कहना। ऐसा कुछ नहीं हुआ संगत जी, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। मेरा क्या मानते नहीं, वो घर में पूरे घर का माहौल इतना खराब है ना। पति सेवा में जाते हैं, गुरुजी से जुड़े हुए हैं, गुरुजी के शब्द सब चीज़ सुनते हैं। गुरुजी ने अमृत वेला भी बख्शी है, सुबह उठ जाते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन जरा जरा सी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हैं। पता नहीं क्यों लड़ते हैं। घर में किसी न किसी बात पे रोज कलेश होता है, रोज कलेश होता है। अब समझ नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है। गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर, सत्संग कर। मैं क्या सत्संग करूं, मैं क्या शुक्राना करूं। किसी ना किसी बात पे, और ये नहीं कि एक ही इंसान लड़ता है तो ये मान लो कि चलो ठीक है। पूरे घर में सब, चाहे वो मेरी सास हो, चाहे मेरे पति हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे बच्चे हो, पता नहीं गुरुजी कौन से कर्म कटवा रहे हैं, या कौन से इतने बुरे कर्म है मेरे, जो ये सब चल रहा है। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, गुरुजी ने सब बख्शा है। लेकिन जो सुकून है ना, वो बिल्कुल नहीं है। प्यार प्रेम जैसे घर परिवार में बच्चों में होता है, नहीं, कुछ भी नहीं है। अब जो वो सपना मेरे को जब गुरुजी ने दिखाया था, वो मेरे को अब याद आ रहा है कि पता नहीं क्या दिखाया था गुरुजी ने। घर बनवाया, अच्छे से करवाया, और फिर मम्मी के वही झगड़े दिखाए, फिर वही घर में गंदगी दिखाई। तो पता नहीं क्या दिखाया गुरुजी ने मेरे को। तो संगत जी, ये सत्संग करने का बस एक ही कारण है कि गुरुजी, मैं तो आपका वो हिंट मतलब समझ नहीं पाई क्या था क्या नहीं था। लेकिन गुरुजी सब कुछ करवाने के बाद मेरे घर में जो कलेश लड़ाई झगड़े हो रहे हैं गुरुजी, वो क्यों हो रहे हैं गुरुजी, आप ही जानते हैं। रोज हर दूसरे दिन, आज गणेश विसर्जन है, और आज सुबह से ही मेरे घर में जो इतना लड़ाई हुआ, इतने झगड़े हुए हैं ना तो किसी ने नाश्ता ठीक से किया, बच्चे रोए, हम रोए, सब रोए। समझ ही नहीं आता ये सब क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि ब्लैक मैजिक है, किसी ने कुछ कर रखा है, तो गुरुजी प्लीज आप ही देखो, आप ही संभालो, मेरे बस की कुछ नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि तेरे पति पे वशीकरण है, तेरे घर में कोई ब्लैक मैजिक करता है। संगत जी, जब मैं यहाँ पे आई थी तो किसी ने ना मेरे दरवाजे के बाहर ना फिटकरी होती है, जो फिटकरी, उससे ऐसी रेखा खींच रखी थी बिल्कुल मेरे गेट से, एक गेट से दूसरे गेट तक। मेरी समझ नहीं आया क्या है ये। सुबह जब मैं उठ के झाड़ू लगा रही थी तो मैंने देखा, मेरी समझ ही नहीं आया क्या है। पर हाँ, ये लगा कि हाँ ये फिटकरी है। मैंने बताया, यानी इग्नोर किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी है, पता नहीं किसने किया है, क्या करा है, मैं नहीं जानती, गुरुजी जानते हैं। एक दिन संगत जी, अभी जब मेरा ये दूसरा गेट लगा है, सही से घर हुआ है मेरा, एकदम घर के बाहर आ गई, बिल्कुल गेट के सामने किसी ने खून के छींटे डाले हुए थे। अब मैं नहीं जानती कौन है, क्या है, क्यों करता है, उसे क्या सुकून मिलता है हमारे घर में लड़ाई झगड़े कलेश करवाने से। किसी को देख के हम किसी को देख के दुखी नहीं होते। कोई अच्छा कर रहा है या अच्छा खा रहा है, लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। गुरुजी ने एक दो के चेहरे भी दिखाए हैं सपने में। गुरुजी बोलते हैं कि तेरे घर में कोई ब्लैक मैजिक करता है और मैं तेरे को उसके चेहरे भी दिखाऊंगा। तो गुरुजी ने सपने में चेहरे भी दिखाए हैं संगत जी।
लेकिन मुझे तो नहीं पता गुरुजी, मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैं तो सिर्फ आपको जानती हूँ गुरुजी। अगर कोई ब्लैक मैजिक करता है या कोई चलन है या नजर है तो प्लीज गुरुजी आप ही देखो। गुरुजी कहते हैं कि तू जवाब मत दे, मैं जवाब दूंगा। तो गुरुजी मेरे को तो जवाब देना भी नहीं आता। मैं तो सब ये चीजें जानती भी नहीं हूँ गुरुजी। आप जानते हो तो आप कुछ करो गुरुजी। आप देख लो, यानी उन करने वालों को क्या मिलता है गुरुजी, जो किसी के घर में सुख शांति से दो रोटी नहीं खाने देते। हर वक्त गुरुजी 2 बच्चे हैं मेरे, संगत जी। गुरुजी सब जानते हैं। मेरी सास है या हमारा परिवार, उसमें हमारे कभी कोई सुकून नहीं रहता। हर वक्त बच्चों को डांटना, बड़ों में क्लेश रहना, कभी तो सुकून की बातें नहीं होती हमारे घर में। कभी प्यार या कभी खुशी हंसी तो कभी दिखती नहीं है। तब से मैं यहाँ आई हूँ मेरठ में गुरुजी। अब मैं नहीं जानती किस कारण है, क्यों है, मन मुटाव क्लेश बस यही रहता है। गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी प्लीज कुछ करो। कुछ नहीं समझ में आता, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। हर वक्त बस एक है कि ऐसा हो जाता है जब लड़ाई झगड़े होते हैं कि कुछ कर लो, चले जाओ। गुरुजी से बोलते हैं गुरुजी मेरे को अपने चरणों में ही ले लो गुरुपा, पर गुरुजी कहाँ लेंगे मेरे को अपने चरणों में, क्योंकि गुरुजी ने तो मुझे अपनी संगत ही नहीं चुना लगता है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं मुट्ठी भर संगत, और जो मुट्ठी भर से बाहर होती है तो शायद मैं तो वही हूँ। क्योंकि मैं ये जलन या ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि मैं जितने भी सत्संग सुनती हूँ सब गुरुजी का गुणगान, गुरुजी की बढ़िया करते हैं। और मैं गुरुजी से शिकायत कर रही हूँ कि गुरुजी मुझे भी तो मुट्ठी भर संगत में शामिल करो। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, आप सिर्फ आप चाहिए और घर में सुकून चाहिए गुरुजी, जो कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पति बिना फालतू में झगड़े लड़ाई करते हैं। छोटी सी बात होगी उस पर इतना बड़ा इशू बना देंगे। ऐसे मेरी सास करती है, बिना फालतू की, बिना बात के। क्या करूं, घर में बिल्कुल सुकून नहीं है संगत जी। आज जो कलेश हुआ, मन किया बस कुछ कर ले, छोड़ छाड़ के चली जाए यहाँ से, लेकिन फिर अगले ही पल क्या होगा, कुछ नहीं होगा। गुरुजी है ना, सब ठीक करेंगे। रुक जाती हूँ सोच के। बस मेरी समझ नहीं आता संगत जी कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। अगर ब्लैक मैजिक है तो गुरुजी आप देखो, आप जवाब दो, आप संभाल लो गुरुजी, क्योंकि मैंने तो सब कुछ आपको सरेंडर किया हुआ है। मेरा आपके सिवा कोई नहीं है गुरुजी। मेरा ये सत्संग करने का कोई ये मतलब नहीं है कि किसी के लिए नेगेटिविटी या कुछ जताने का, लेकिन मैं जिस स्थिति से गुजर रही हूँ, मैं किससे कहूँ, कहाँ कहूँ। अगर मैं अपने गुरु परिवार में या गुरु जी से नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी, कौन है मेरा इनके सिवा। कब से सोच रही हूँ क्या सत्संग करूँ, क्या सत्संग करूँ, लेकिन बस यही मेरा सत्संग है आज का। गुरु जी
या तो मुझे बदल दो, बिल्कुल ऐसा कर दो कि कोई कुछ बोले कुछ कहे, मेरे पे कुछ फर्क ही ना पड़े, चाहे बच्चे पढ़े ना पढ़े, कुछ करे ना करे, चाहे कोई मुझे कुछ बोले, मुझ पे कुछ फर्क ही ना पड़े। या तो मुझे ऐसा कर दो गुरुजी, या तो जो भी ब्लैक मैजिक है उससे दूर कर दो गुरुजी। आज विघ्नहर्ता की गणेश जी की विदाई है, तो गुरुजी मेरे कष्टों का भी विदाई करो। प्लीज गुरुजी मेहर करो, अरदास है आपसे, आपकी इस बच्चे की जो हर वक्त आपके सामने रोती रहती है किसी ना किसी को लेके, हर बात में कलेश झगड़े, बच्चों में प्यार प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्यार प्रेम नहीं है, दादी पोतों पोती में प्यार नहीं है, कुछ नहीं है। हर वक्त एक दूसरे को टोंट कसनी, हर वक्त लड़ाई करना, हर वक्त एक दूसरे की गलतियां निकालना, बस इसके अलावा इस घर में कुछ नहीं है। तो गुरुजी प्लीज मेहर करो, प्लीज मेहर करो गुरुजी। आप विराजमान हो तो प्लीज विराजमान होके आप इस घर के बड़े हो गुरुपा, अपने तरीके से अपनी रजा बिच रखो गुरुपा, अपने तरीके से चलाओ इस घर को। मेरी अरदास है गुरुजी आपसे, प्लीज आप आओ और इस घर को चलाओ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा सत्संग अगर आपको सही लगे तो प्लीज अपलोड कर देना, अगर गुरुजी चाहते होंगे तो प्लीज अपलोड कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा का जितना भी बखान किया जाए उतना ही कम है। हमारे गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमें कोई भी अनहोनी होने से पहले सूचित कर देते हैं। संगत जी, मुझे 2-3 दिन से मैसेज आ रहा था कि अगले 3 दिन भारी हैं, ध्यान से रहना। संगत जी, पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन फ्राइडे की रात को मैं किचन में काम करने गई तो मेरी किचन की जो ड्रॉर है वो बाहर निकल कर गिर गई। मैं उसमें से बर्तन निकाल रही थी, वो एकदम से बाहर आकर निकल गई और सारे उसमें बर्तन नीचे गिर गए। उसमें कांच के बाउल थे, वो एक बाउल भी गिर के टूट गया। संगत जी, वो ड्रॉर इतनी भारी थी, अगर वो मेरे पाँव पे गिर जाती तो मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा चोट लगती, और वो कांच का बाउल टूटकर अगर मेरे पाँव पे गिरता तो उस दिन बहुत ज़्यादा मुझे चोट लगती। लेकिन गुरुजी की महिमा देखो, गुरुजी की कृपा देखो कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित रही, कहीं कुछ नहीं लगा, सिर्फ बर्तन बिखर गए, एक बाउल टूट गया और मुझे कुछ भी नहीं होने दिया गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी जो हमारे हर वक्त हमारे अंग संग रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो
संगत जी, जो हमारे मैसेज आते हैं वो बिल्कुल सच होते हैं। आप ये मत सोचा करो कि ये मैसेज हमारे लिए नहीं है। जो फ्लैश हुए हैं वो हमारे लिए ही होते हैं, इसलिए हमें उन पर अमल करना चाहिए। मेरा दूसरा सत्संग ये है संगत जी कि मेरे हस्बैंड आजकल मेरे बेटे के पास गुड़गांव में रह रहे थे। अब श्राद्ध आने वाले हैं। मेरा मन बहुत उदास था कि मैं अकेली कैसे करूँगी। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी आप मेरे पति को वापस मेरे पास भेज दो ताकि मैं उनके साथ मिलके श्राद्ध कर सकूं। मैं ये अपने मन में ही कह रही थी कि उसी दिन शाम को मेरे बेटे का फ़ोन आया कि आप पापा को बुला रही हो। पापा मुझे बोल रहे हैं कि मम्मी ने कहा है श्राद्ध है, घर आ जाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जबकि संगत जी मैंने कोई फ़ोन नहीं किया था, मैंने सिर्फ मन में ही सोचा था। मैं सोच रही थी कि फ़ोन करूं, लेकिन उससे पहले ही गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को थोट डाल दी कि श्राद्ध है, घर जाओ। जबकि वो काफ़ी दिन से आने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं कई बार उनको पहले भी बोल चुकी थी आ जाओ, वो नहीं आ रहे थे। मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि उनके ऊपर वशीकरण हुआ है। लेकिन गुरुजी ने कैसे मेरे मन की बात सुनी और उनको वापस भेज दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी को सच्चे दिल से मानो। गुरुजी आपकी हर विश पूरी करेंगे, आपकी हर तकलीफ़ दूर करेंगे। सुबह शाम गुरुजी का शुक्राना करो। शुक्राना करने से बहुत कृपा मिलती है। गुरुजी बहुत कृपा बरसाते हैं। तो संगत जी, मैं अब नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। गुरुजी ऐसे ही सब पर कृपा करें, सबके कष्ट दूर करें, सबको ब्लेस करें। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं दिल्ली से गुरुजी की संगत बोल रही हूँ। संगत जी, मैं एक शुक्राना सत्संग गुरुजी की सेवा में, गुरुजी के शुक्राने में एक शुक्राना सत्संग उनकी सेवा में अर्पित करना चाहती हूँ। संगत जी, अगर मुझसे संगत जी सॉरी, मुझसे अगर सत्संग करने में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी, संगत जी, आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, वो मैं अभी शाम को जब मैं फ़ेसबुक देख रही थी तो उस पर एक मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि शायद वो कल का मैसेज था कि पुत्र आज शनिवार के दिन का शुक्राना करते। और मुझे भी ध्यान में नहीं रहा संगत जी कि आज शनिवार नहीं है, तो आज रविवार है। तो संगत जी, मैं शुक्राना करने के लिए बैठी और अभी मुझे जस्ट याद आया कि आज तो शनिवार नहीं है, ये शायद कल का मैसेज था। लेकिन कोई बात नहीं संगत जी, मैं अब शुक्राना गुरुजी का करने बैठी हूँ तो मैं मतलब अब गुरुजी का शुक्राना कर ही रही हूँ।
तो गुरुजी आप इसे स्वीकार कीजिएगा। गुरुजी मतलब आप जैसे भी जो भी सेवा दें उसका अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना है। मतलब दिन या वार से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी कृपा तो हमेशा ही हम पर बरसती है, तो हम वार और दिन देखकर क्यों आपका शुक्राना करें। आपका हर दिन का, हर पल का, हर वक्त का, हर घड़ी का, हर श्वास का शुक्राना है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, फेसबुक पर मुझे एक और मैसेज मिला था कि पुत्र तू मेरे भजन चलाकर वो नचा कर, तेरी सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है जय गुरु जी, मैं ऐसा करूँगी। ठीक है गुरु जी, आपकी सेवा देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप कैसी भी सेवा देते हैं उसमें कल्याण तो हमारा ही है गुरुपा। आप कितने अच्छे हो के मतलब गुरुजी के जो गुरुजी हमारी नेगेटिविटी का, बीमारी का जो भी इलाज बताते हैं, मतलब कितना मज़ेदार ही बताते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है कि कि हमें बहुत कठिनाई होती है। पर तो गुरुपा मतलब आप जो कहें सर माथे पर गुरुपा। संगत जी मतलब वही गुरुजी ब्लैक मैजिक के भी सत्संग सुनवाते हैं, पर मुझे अभी तक भी नहीं पता चला है संगत जी पर कि पता नहीं वो कौन मेरा अपना है जो मुझ पर ब्लैक मैजिक का प्रहार कर रहा है, वार कर रहा है, मुझे नहीं पता संगत जी। पर चलो, अब मुझे इतना मेरे अंदर मतलब रिलीफ है, मुझे अंदर से ये टेंशन नहीं है कि मतलब गुरुजी साथ खड़े हैं, जब वो अंग संग सहाय खड़े हैं तो अभी कोई डरने की बात तो नहीं है संगत जी। संगत जी ऐसे ही मैं रात को कपड़े प्रेस कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं ऐसे ही जब मैं सत्संग देखती हूँ मैं साथ साथ में कपड़े प्रेस करती रहती हूँ। तो तो मेरे मतलब गुरुजी भी कहते हैं कि मेरा सत्संग सुनते रहो और अपने घर के काम करते रहो। गुरुजी में से मतलब मैंने गुरुजी के मैसेज में पढ़ा ही है कि पहले मतलब जैसे गुरुजी कहते हैं कि मतलब जैसे अपने परिवार के काम निपटाओ, अपनी जिम्मेदारियां निपटाओ, तब मुझसे और उसके बाद मुझसे कनेक्शन बढ़ाओ। मैं तुम्हारा घर तोड़ने नहीं, तुम्हें जोड़ने आया हूँ, ऐसा गुरुजी मैसेज करते हैं। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰੋ, बच्चा दे भविष्य ਨੂੰ संवारो, ऐसा गुरुपा मैसेज देते हैं। तो मैं ऐसे मतलब तो संगत जी मैं वो कर रही थी, तो मुझे रात में ऐसे ही मतलब काफ़ी रात हो रही थी संगत जी, और मेरे हस्बैंड भी घर पर नहीं थे, वो किसी काम से अपने बाहर गए हुए थे। तो मैं ऐसे ही जब टीवी पर देख रही थी तो ऐसे ही एक सत्संग फ्लैश हो रहा था, मतलब टीवी पे देख रही थी जब मैं कि उसमें कुछ ऐसे ही बहुत डरावना सा मतलब जो वो सत्संग की हेडिंग थी वो काफ़ी डरावनी थी। और संगत जी मुझे बहुत मतलब मैं सुन भी रही थी, और एक आंटी कुछ बता रही थी ब्लैक मैजिक के ही बारे में, मतलब जैसे उनके ड्रॉर वगैरह से पता नहीं, और कुछ ही बहुत ही अजीब सा सत्संग था। मतलब सॉरी संगत जी, मतलब बहुत मतलब डरा देने वाला सत्संग था उन आंटी का। तो मैं काफ़ी डर गई थी संगत जी, और मुझे काफ़ी देर तक नींद ही नहीं आई। मतलब मैंने उस सत्संग को थोड़ा आगे कर दिया कि आंटी की बात मुझे सुने ना, मतलब मुझे भी काफ़ी ऐसे डर महसूस होने लगा। तो संगत जी बस मुझे समझ ही नहीं आता ये ब्लैक मैजिक का गुरुजी, पता नहीं, और पता नहीं कब तक चलता रहेगा ये सब,
पता नहीं है गुरुपा, पर आप हो साथ में तो सब ठीक ही होगा। और मैं गुरुजी का नाम लेकर और फिर मैं सोने की कोशिश की मैंने संगत जी। बस संगत जी, बस गुरुजी आपका जो आपने अपनी सेवा देते हैं, संध्या वेला शुक्राना के लिए भी गुरुजी बोल रहे थे कि संध्या वेला शुक्राना करो। तो गुरुजी मैं पूरा मतलब आपका आदेश है तो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी गुरुपा। आप उसमें मेरी सहायता करिएगा गुरुपा। गुरुपा मतलब मेरे बच्चों को आप ठीक ठाक रखिएगा। मेरे दोनों बच्चों को मतलब कुछ दिनों से कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो गुरुजी महाराज आप प्लीज़ उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा, उनको ठीक रखिएगा गुरुपा। वो बहुत छोटे हैं गुरुपा, आप उनकी रक्षा कीजिएगा गुरुपा। और संगत जी, मेरे घर में कोई भी गुरुपा से कनेक्टेड नहीं है तो मतलब और मेरे पास गुरुपा का ना ही कोई स्वरूप है, ना ही जल प्रसाद है। तो मतलब मैं कई बार सोचती हूँ कि मतलब मेरे पास भी अगर जल प्रसाद होता तो मैं भी अपने बच्चों को पिला पाती। मैंने कई सत्संग में सुना है कि जल प्रसाद पीने से एकदम से सब ठीक हो जाता है, छोटी छोटी बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। गुरुजी का जल प्रसाद लो। तो संगत जी, मेरे पास तो है ही नहीं। तो गुरुजी महाराज, बस मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती हूँ। तो मतलब ऐसे ही दिमाग में आया, कई बार मैंने मतलब कई जगह पर कहीं कहीं से मैंने सुना था कि ऐसे मंत्र जाप करो जल रख कर। तो मैंने भी अपने मतलब शायद गुरुजी महाराज ने ही थॉट डाला होगा। मैंने भी फिर ग्लास में जल रख कर मंत्र जप करके गुरुजी का, तो मैंने बस गुरुजी को बोला कि हे गुरुजी महाराज, आपका ही मंत्र जप करके ही मैं ये जल अपने बच्चों को पिला रही हूँ। तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा गुरुपा, बस आप ही ठीक रखिएगा मेरे बच्चों को गुरुपा। क्योंकि मेरे पास और कोई भी मतलब मेरे पास कोई और उपाय है ही नहीं गुरुपा। मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है आपका, कोई जल प्रसाद नहीं है। तो मैं तो उसे ही जल प्रसाद मानकर आपका अपने बच्चों को पिला रही हूँ गुरुपा। अब मैंने अपने बच्चों को पिलाया है, मतलब 2 दिन से मैं उन्हें पिला रही हूँ। तो गुरुपा आप अपनी कृपा रखिएगा गुरुपा, आप उन्हें ठीक करिएगा गुरुपा। और क्योंकि मुझे कई सत्संग ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि तेरे बच्चों पर कष्ट आ रहा है, मतलब ऐसे ही सत्संग दिख रहे हैं मुझे। तो हे गुरुजी महाराज, आपसे बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि रखिएगा गुरुपा। बस गुरुजी, बस आपका हर चीज़ का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। आप तो जान हो गुरुपा, सब जानते हैं, आप सब ठीक कर देंगे धीरे धीरे। बस आप ही देखिएगा गुरुपा, आप ही मुझे बड़े मंदिर बुलाएंगे, आप ही मुझे अपना स्वरूप भी ब्लेस करेंगे ताकि मेरे पास भी आपका स्वरूप हो। बस गुरु महाराज जी, मैं अपने सत्संग को मतलब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, मैंने आज ही किसी सत्संग में सुना है कि ऐसे नहीं बोलना होता है कि सत्संग को विराम करती हूँ। तो मैं भी ऐसे ही बोल रही हूँ गुरुजी कि मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो शुक्राना 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 गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैंने आपका मंत्र जप नहीं किया था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अभी आपका मंत्र जप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।